अच्छा प्यार कर दी है लेकिन फोन बंदे का इसको नेक्स्ट टाइम ना करदा कर देना, प्यार करना। और मजे की बात है आज माइक पे लिपस्टिक भी कम है। लास्ट हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मीडिया ब्रीफिंग, वो मायसा जी कम से कम 1 आवर तक माइक पे बोल रही थी, तो जब मैंने माइक वापस लिया तो पूरा लाल हुआ था, उनकी सारी लिपस्टिक उस पर आ गई। आज मैंने पहले देखा है, देख लिया, आज ठीक है। So I'm very excited and I'm really looking forward to seeing you all there, inshallah. Thank you so much. अच्छा कुछ लोग और अभी आए हैं उसमें you have a question. My family members, they just arrived. You know, my son is there, Mohammed. Can you raise your hand, Mohammed? My oldest son is there. My daughter is there, Riham Khan. She's there too. Say hi. And my sister is there, Shazia. Thank you so much for coming. Any other question? And standing next to Shazia, we've got Anila here. Anila with her husband. Thank you for coming. Sorry. No problem. Okay, yes. Yes. आप खड़े हो जाइए. Yeah. Excuse me, अमानत साहब से मेरा क्वेश्चन है। Mike. जी, आई कैन स्पीक लाउड। अमानत साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जो आप इंडिया में रहे, तो क्या फील करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के कॉर्डियल रिलेशन बन सकते हैं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब आर्मी में था तो हमारी वाइट फ्लैग मीटिंग होती थी, तो हम 1 घंटे की बजाय 3-3 घंटे हम आपस में, हमारे ये होता कि वाई आर वी फाइटिंग। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो इंडिया में आपने फील किया है कि फ्यूचर में वील हैव अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जी डेफिनेटली ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये मैं ये समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान का जो सिलसिला है, जो मामला है, वो 2 भाइयों वाला, जिनमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, फिर बाद में सुलह भी हो जाती है। और बाकी तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, बट एज एन आर्टिस्ट, हम जो इंडियन पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हम वी आर वेरी वेल कनेक्टेड आपस में ना, बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं। और आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान पंजाब और इंडिया पंजाब, वो तो अभी भी कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। बस जो बैन है वो आई थिंक बॉलीवुड और पाकिस्तान की कोलैबोरेशंस पे है। और आई होप कि जो रिश्ते हैं आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे, और मेरे ख्याल से होने चाहिए। मैं एज एन आर्टिस्ट तो ये कहता हूँ कि म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज, म्यूजिक की, एंड म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज। म्यूजिक होता है, और ये रिश्ते मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। थैंक यू। Thank you so much. सिंगर मौजूद हों और वो गुनगुनाए ना तो को मजा नहीं आता। वो अपना फेमस सॉन्ग थोड़ा सा सुना दें। इससे पहले अमानत के साथ एक गॉर्जियस, स्टनिंग, ब्यूटीफुल Canadian youth, the Canadian singing sensation, Maisa will also be singing in this event. So, Maisa, what would you like to say? Thank you so much for the beautiful introduction. Of course, our gorgeous Casey, she's always there to support me. She's been there since day one. And this is what our concert is all about. It's together for a cause. And for such a magnanimous effort, I thank Casey for putting this media briefing together tonight. Can we have a huge round of applause for our gorgeous Casey? And basically, I do have a very special announcement to make today. The $59 tickets are now sold out. Can we have a round of applause? It's such an honor because we've got the superpower, the magnanimous Amanat Ali here with us today. And इनके नाम पे हम इतने जल्दी tickets हम बेच रहे हैं. It's an honor. I know everybody present here today will be getting 2 tickets to come for our event. But my humble request is to please contribute. Even if you could do $25, if you could do 2 tickets, everybody, I would really appreciate that, because portion of the proceeds are going for a very, very special cause. As you know, part of the proceeds from our event will be devoted for aiding the victims in Gaza and Lebanon. Your support will not only bring light to the celebration
but also extend a helping hand to those who need it most. So ladies and gentlemen, please let's make this event a success. Myself, your Canadian singing sensation. I'll be featuring this beautiful event with Amanat Ali. Amanat Ali is our superstar. He is the main act for this special night. It is a pre-New Year concert that we're doing, so we're actually combining two events. It's a charitable event as well, which I mentioned earlier, and at the same time we're celebrating New Year's on December 15th, and it's a Sunday, so everybody is available. So you guys all have to come out. Make sure you share this on your social media. That's why we had the media briefing today. शॉर्ट नोटिस पे हाँ जी रात के 2 बजे शायद। और आज की मीटिंग ग्रीट के लिए कितने बजे कॉल आई मुझे? कल रात 1:30 बजे। तो लेकिन मजे की बात है, जिसको कॉल की वो भी जाग ही रहा है। देख सोच की कॉल करते हैं। तो I'm very excited, and I can't wait to see you all there. Inshallah, it's going to be an amazing event, and the most important thing is it's for a very big cause, for a very noble cause. और मैं ये बताना चाहूँगा, I started my career back in 2007 when I was a teenager, और 17 साल में बहुत काम किया। आप नेम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमारे देसी लोग मौजूद हैं, जहाँ मैंने परफॉर्म ना किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना भी मैंने काम किया है, कॉन्सर्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें से आई थिंक 30 to 40%, मे बी मैं नंबर थोड़ा सा गलत ऐसे गैस दे रहा हूँ आपको, 30 to 40% काम जो है मैंने चैरिटी के लिए किया है पूरी दुनिया में। और यूरोप हो, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और जापान, पूरा जितना हमारा अरब ममालिक का जितना खिता है, बहरीन, कतर, दुबई। तो मैं हमेशा जब चैरिटी के लिए काम होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लूँ। और फाइनेंसिस के हिसाब से भी हम बहुत उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमारी कोशिश होती है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है इस आ जाए तो फिर भी कमी है. So this was me. So apart from my teaching, it's my TV. And let me all tell you, I work with the Indian media. So I am with Punjabi Television Network, representing Pakistani, representing a Muslim lady. Thank you very much. Thank you so much, Casey. A nice introduction. Allah आपको जो है वो जज़ा खैर दे. Preeti is sitting here and she is one of the sponsors too of this event. Thank you so much, Preeti. Preeti, you have a question for Amanat, right? What do you want to? So my question will be, which is your favorite song till now, whatever you have sung? And my question will be, where's the mic? Okay, so I think it's a very tough question for an artist, क्योंकि हम being musician हमारी इतनी लंबी लिस्ट होती है म्यूजिक की, सॉन्ग्स की. So I can never choose one favorite song, never in life, because इतने बड़े legends हैं जिनको हम सुनते हैं और फिर हमारे अपने songs होते हैं. So I don't really have an answer to this question. बहुत लंबी लिस्ट है. Thank you so much, Amanat. आपको ये पूछना चाहिए था कि एक गुनगुना दें तो अच्छा होता, लेकिन we will have another question. तायरा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. कम्युनिटी की मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर और कम्युनिटी एक्टिविस्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं इस में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाइए आप. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? मैं अमानत से एक छोटा सा सवाल करता चलूँ. अमानत, आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन वी कैन हैव यू नो आस्क क्वेश्चन. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन वो ये है कि आप कितने एक्साइटेड हैं दिसंबर 15 के इवेंट को लेकर? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ.
खास तौर पे जितने मजेदार ये मीट एंड ग्रीट हो रहे हैं माशाल्लाह, लास्ट ये हमारा हुआ था और आज भी इतने लोग आपके इतने शॉर्ट नोटिस पे पहुंच जाते हैं, इंक्लूडिंग दी आर्टिस्ट। आप चेक करें, मेरी जो उनसे लास्ट बात हुई है, हमारा डिसाइडेड तो था कि विल बी डूइंग मीट एंड ग्रीट्स एज वेल, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे होगा ये डिसाइडेड नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने कहा जी अमानत भाई कल हमने जाना है शाम को। स्पेशली मैं यहाँ आई हूँ और अमानत अली को सुनना भी चाहूँगी, क्योंकि यूजुअली हम जो है जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाते हैं हमारी उम्मीदें बहुत 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 ऊपर होती हैं। मैं बैटरी नहीं डालूंगी, सिर्फ रोशनी ही डालूंगी। तो उम्मीद है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे तो वो उसको आप पूरा करोगे और इंशाल्लाह यू विल बी रॉक ऑन दैट डे। वी आर विद यू ऑन 15 दिसंबर। ईस्ट शॉप जाग जाइए ईस्ट साइड। And we've got a very pretty lady at the back, Shumaira Imran. Shumaira Imran, आप अगर खड़े हो तो अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। Hi everyone, Assalamualaikum. This is Shumaira Khan Imran. I am a host and producer radio and TV channel. और आसिफ साहब बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना ज़बरदस्त आप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। और अमानत से हमारी पहली ब्रीफिंग हुई थी लाहौरी फिल्म में, उसके बाद आप, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि अभी मेरी रिकॉर्डिंग थी और मैं रिकॉर्डिंग से सीधी यहाँ आई हूँ। थैंक यू सो मच। बिफोर वी कंटिन्यू, मैं यहाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि माशाल्लाह जिस तरह ये पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेज उजागर करते हैं, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि पाकिस्तान का जो इमेज है, जो डिप्लोमेट्स इतना नहीं कर सकते हैं जितना कि आसिफ ने सिंगल हैंडेडली किया। तो आई रिमेंबर कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इनको कॉन्सुलेट जनरल के लिए प्रेसिडेंट ने जो ना नॉमिनेट किया था, बट लाइक इट वाज इन द पाइपलाइन, देन थिंग्स चेंज्ड। एंड अनदर थिंग, ये जो कॉज के लिए एब्सोल्युटली पैलेस्टाइन के लिए इन्होंने जो किए हैं, गजा के लिए किए, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इट्स वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। तो हम सब पे आई थिंक ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टिकट्स के लिए, जब आप अनाउंस कर रही थी केसी, हर कोई अनाउंस करते ठीक है मैं 4 ले रहा हूँ या मैं 5 ले रहा हूँ, तो इधर ही सारे शो ने सोल्ड आउट हो जाना था। बट अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सब आए और हम सब पे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शो को हम कामयाब करें, ताकि दूसरी कम्युनिटी भी नजर आए कि पाकिस्तानी आर वेरी कनेक्टेड, दे आर टुगेदर, दे आर यूनाइटेड। दैट इज द वी नीड टू गिव। सो वंस अगेन आसिफ, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी जब आप करेंगे हम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे So we've got some new friends in here. I can see Tabinder here. Yeah. Hey Tabinder. Yes, yes. So Tabinder is also from media. And Tabinder, what else do you do? Thank you so much, Casey. Assalamu alaikum to all of you. I am a big seller of from East Side. हमेशा से टिकट्स मेरे आ ही जाते हैं, तो Casey. And my favorite viewers should be proud of him because he's the doctor in the house, Dr. Sadiq. Dr. Sadiq is a psychiatrist. जिसको भी कोई मेंटल प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट हमारे साथ, डॉक्टर, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेकर इनको देखने जा सकते हैं। डॉक्टर, would you like to say something? Yes. And डॉक्टर की एक अच्छी बात ये है, he sponsors, he comes, he supports all kind of community events, and he's today here with us, and that's brilliant. Did I leave anybody on that? Somebody sitting there. Oh, yes. I want to call. Tanzila, you're just sitting. I didn't see you, darling. Okay, Tanzila, would you like to say more about you? She needs a doctor now. Tanzila is a doctor. She does carry the title Dr. Tanzila. And I know her because she is a fashionista as well. Yes,
beauty pageant as well. And over here I am right now on behalf of my organization, Pakistan, and all my organization is in support of this beautiful event. Thank you. Best of luck. Thank you. Anybody sitting there who are missing? Hi. ये मेरी बचपन के क्लास फेलो हैं, उनकी नीस है यहाँ पे। ये अनीसा प्लीज स्टैंड अप। शी इज डूइंग PhD इन मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। किस सब्जेक्ट में कर रही है? अर्थ एंड एनवायरनमेंट। शी इज अ वेरी बड़ी टैलेंटेड बच्ची है माशाल्लाह। And I think we've got Yasmin, Mesa's mom there. Welcome, Miss Yasmin. Yes, please. Aisha Rabani. Aisha Rabani. Yes. Thank you. So I think we covered. Anybody left? There are two more intros left. Actually, I want to call Yusha Saeed on the stage here to have few words because he is one of the influencers, the youngest influencers of our community. I want him to shake hands with Amanat and say a few words here. How do you feel, Yusha, today? I'm going to take your interview. I feel great today. Do you know this gentleman who is next to you? Yeah. What is his name? Amanat Ali. Do you remember any of his songs? No, because I don't really listen to music. Do you want to say something to Amanat Ali? His show is lined up for December 15th. I actually want to interview him. Okay. Sure, when? You want to do it now? Yusha, wait. Assalamualaikum, Amanat Ali. Okay, after Yusha, keep your questions intact. हम question and answers करते हैं Amanat से, and then we go from there. Assalamualaikum, Amanat Ali. How are you? Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm great. So, if you were not to be a singer, then what would you be? Nice question. I think I would have been an actor. So, what inspired you to become a singer? I have a musical family background. My grandfather was a singer. My father was a singer. My uncles, my mother and father, both sides are like I have a musical family background, so it was more than passion. It was a responsibility for me to carry the legacy of the family to become a musician. What do you have? Do you have any advice for young aspiring singers like me? Because I'm also kind of a singer, so do you have advice for me? Okay, before I give you an advice, I would like you to sing something. Right now I only sang 2 songs, but I can sing like 2 lines of my GD20 song. It's like a cricket tournament song. GD20, our desire. We all young and full of fire. All us friends, yeah, we sing along. Cricket fever so strong, turning loud, we'll sing along. Cricket fever forever strong. So can you get followers to follow me on YouTube, TikTok, and Instagram? Can I get your name? Yusha. Yeah. Okay, I request all my followers and fans to follow him on Instagram, and to subscribe his channel on YouTube. Yusha Saeed. I'll follow you as well. Thank you very much. Thank you so much. अच्छा, we have Amir Bhatti here, who is one of the sponsors, a very good friend of mine. मैं उनको चाहूँगा कि
माइक देता हूँ और कुछ वर्ड्स आप भी प्लीज। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ से बड़ी एक पुरानी दोस्ती है, कोई 13-14 साल पहले की। पहली बार मैं मिला, मैंने कहा जब बंदा तो शानदार है, इनको राब्ता रखना चाहिए। और माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने इस बात के लिए जब किया इन्होंने, तो मैंने कहा आसिफ आई विल बी देयर ऑल आउट एंड वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्पॉन्सर्स। और आसिफ की ये बड़ी क्वालिटी है कि पूरे पाकिस्तानियों को बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो इसमें हुनर है ये कमेंडेबल है, एब्सोल्युटली कमेंडेबल। We've got Amanat Ali here. So instead of going in detail, we'll take a quick introduction to. I'll be pointing out towards you and just say your name out loud. Yes, please. Yes. Yeah, my name is Mehreen Jaffrey. I am event and business marketer. And along with that, I'm a financial advisor. So we've got Mehreen Jaffrey. Yes. My name is Sarah. I'm an influencer. Sarah. Binaji, Nigat, Navi. Yes. Noshin Tarek. I'm an influencer and lifestyle. Madiha Kashif. We've got Aram from media. Abir Fatima. Abir Fatima. Marina Rajaman from Voice of Toronto TV. Thank you. I'm Yusha's mom. Marina, Yusha's mom and Yusha's dad. Yes, please. Shamsul Huda from Canadian Association of Pakistani Farmers. Shamsul Huda. And from Media TV channel for health and wellness. Thank you. Rashid Hassan. Rashid Hassan. Ex-army officer Sayyid Javed Bukhari from Military Police Pakistan. Army officer. Wow. Javed. Hamid Hamidi, Hamid Hamidi. He's again a poet. poet, writer and director of Karwan and Shero Poet, Sufan. writer, director. And I have my channel as well. We've got Bahar here. Bahar has been introduced. And he's an HR professional and community TV media host. Farooq has already been introduced. Yes, please. Behind Javed, yes. Abdullah Ghori. Abdullah Ghori. Hi, this is Karan Jar, and I'm a social media influencer with Being a One. Karan Garg, social media influencer. Wajahat Masood, I'm a mortgage advisor and an actor. So we've got an actor in the house. Yay! Yes. Noreen Wajahat from Medina Valley. Noreen Wajahat. Your introduction आप ही करा दें. Beena, we've got Beena. Beena is a beautician, a makeup artist. She's an award winner, beauty artist in here. Thank you for coming, Beena. Next to Beena. And he is Beena's husband. And we've got Irfan Ali. Irfan Ali, yes, please. Irfan Chaudhry. Irfan Chaudhry is from Eye Optical. Would you like to say something more? We have optical business, healthcare industry, and we have restaurants, churches, Texas Chicken. So Irfan Ali is the owner of the Texas Chicken and Eye Optical. The glasses which you see me wearing, all kind of high-end brands. That's where I get it from. Thank you, Irfan. Next to Irfan. I'm Fazan Sheikh. I run community group Bhai Log with Mubin Bhai. Fazan Sheikh from Bhai Log. Kaz. KK from Punjab Police, ex-retired. Oh my God. Serving the community. Yes, KK Channels. या ये की फ्लाइट्स जो आपको इतने सस्ते में मिलती है वो ये है, आपको कनाडा से पाकिस्तान लेके जाती है और पाकिस्तान से वापस। Travel Zindabad. Thank you so much, Casey, for the kind introduction. Really appreciate it. And we are honored you're here. Any of you guys looking for any Umrah packages in the month of Ramadan or Hajj packages, please contact us. Umrah packages और इसके अलावा ऑरलैंडो के पैकेजेस, डिज्नीलैंड के पैकेजेस जिनके पास रिसेंटली आए हैं। मुबीन जी, मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। मैं एक आम कम्युनिटी मेंबर हूँ आप सबकी खिदमत के लिए। तो भाई जिसको जो मदद चाहिए आप 911 पर कॉल कर सकते हैं। So Mubin is there for any kind of community support and help. Thank you, Mubin. Farhan Jalali. Thank you, Casey, for inviting us. Myself, Farhan Jalali from Khandani Khana and View House Entertainment.
और हम आसिफ मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसको जो भी करता है कुछ तो हम उसकी सपोर्ट में हाजिर रहते हैं। थैंक यू आसिफ, थैंक यू केसी। फरहान भी टीवी होस्ट है। नादिया जिलानी आप सब जानते हैं। हलीम अक्सर हम ऑर्डर करते हैं, हलीम निहारी खानदानी खाना, he owns that. So thank you very much. Behind you anybody? सैमी खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरफ है a beautiful friend, Anila. Anila is a singer and mortgage agent. Okay. And beautician. So mortgage agent and beautician. Look at the skill sets you've got here, everybody. Anila के साथ है दीवा। दीवा, अपने बारे में कुछ बताएं। आपने बुलाया है, टीवी के साथ मुझसे लिख रही हूँ, एज अ टीवी होस्ट मैंने काम किया है, बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, पाकिस्तान टेलीविजन से मेरा ताल्लुक है, लाहौर सेंटर से मैं न्यूज़ पढ़ती थी, तो बस सब मीडिया में कभी कभार आ जाती हूँ, थोड़ा सा अपडेट को टाइम देती। We are going to come on board and we'll help you out. Thank you so much, Parvez bhai. I want to have some words from you. Thank you. Assalamu alaikum everybody. Thank you very much for I got your invitation for tonight. I was a little bit busy, but anyway I come for respect and of course for the reason that you guys have got together into such a great event for a great cause. And it's a pleasure for us to be part of this. And I hope that everyone come and help you guys. Thank you. Help the one that you want to help. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you very much. Help the ones whom you want to help. Very well said, Parvez. And thank you to Masood also. He has been coordinating throughout in many events. So thank you to Masood also, who is the right hand of Janab Parvez Saab. We have got Janab Atiq Farooq. I want to have a quick introduction of Atiq bhai. परवेज साहब ने जो कह दिया मैं अग्री करता हूँ कि मदद करनी चाहिए और इस कॉज के लिए आसिफ भाई गवाह हैं कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया जब तो पहला मैं स्पॉन्सर था जो आसिफ भाई को मैंने अप्रोच किया क्योंकि ये कॉज बहुत अच्छा है और इस कॉज के लिए मेरे ख्याल में अमानत को भी इस पर क्रेडिट जाता है, आसिफ भाई को तो जाता ही जाता है क्योंकि आसिफ भाई ने जो माशाल्लाह ये कॉज लिया है मैं सबसे कहता हूँ कि इसको बगैर किसी वजह की टिकट खरीदें क्योंकि ये कॉज में जा रहा है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा से बहुत अच्छा हो। Thank you. We have Kaz Khan from KK Travel. Thank you so much, Kaz, for coming. We have got Farhan Jilani. Thank you so much for coming. We have got Mubin Qureshi from Bhai Log. A huge round of applause for Mubin and Bhai Log. They've been supporting us. Thank you so much. There are a few more introductions that you have to do. Okay, so I want to stand because I can't see all. How about if I point at you and you just say your name out loud? How's that? Okay. All of you, see people are scoring right now, including me. So everybody who's present here, either they are media or promoters or influencers or some kind of professionals, community friends, artists, and of course for me, each one of you are a celebrity because you all came, you took your time and you're here to support, to be together for this very cause. Let's give it up for these awesome people. Alrighty, I know you guys have your phones up, so clapping might not be our best forte today, but our voices are. And look, you know what, it's such a great initiative that you've taken. हम concerts देखते हैं जहाँ पे artist आता है, पैसा बनता है, लेकिन इस scenario में portion of the proceeds are going to Palestine and Gaza. और I think दुनिया में कहीं भी violence, killing or innocent lives जब यहाँ से जाती है दुनिया से, तो हमें उसके लिए खड़े होना चाहिए। और फिलिस्तीन और गाजा के लिए बहुत लोग घबराते हैं, सियासतदान काफी घबराते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन I'm one of those individuals that is
for Palestinian lives, for all innocent lives across the world. But right now, I think really there is devastation in Gaza, and I stand with Gaza for this very reason. And the reason why I decided to show up at this event today is because these organizers did a great job in organizing this media briefing, bringing the awesome Amanat Ali and the whole 9 yards of the team. So I want to thank every single one of you for being part of a good cause. You know, there's causes where you've got concerts and you've got multiple other events going on, but hardly anyone ever takes the initiative to say, you know what, the money we're going to make today through this concert, portion of those proceeds will go towards an incredible cause such as helping Gaza. Protests बड़े देख लिए, protests बड़े होते देख लिए, participate होते देख लिए, but this is real initiative where people are taking real money that they are receiving for a proceed like a concert, and they're willing to send portion of that to Gaza and Palestine. So thank you everyone that is on stage and everyone off stage, because really this event can't happen without you. So let's give you guys a huge round of applause and these guys a huge round of applause. लेकिन usually क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि इनको तालियां दें तो usually आवाज नहीं आती, लेकिन अपने लिए भी हम लोगों ने ताली मारी. Let's give yourselves a huge round of applause. और जो पीछे वाले हजरात बैठे हैं वो कैसे लग रहा है, क्यों आए यहाँ पे तालियां मारने के लिए? और thank you very much. Can we have a cheer for So before we go to Amanat, Jamshed bhai से request करता हूँ कि just to say a few words, you know. Assalamualaikum everyone. Thank you, Amanat bhai. Thank you for coming. Absolutely, Samaijan. Thank you very much for coming, everybody here. Such a pleasure to meet you guys, and it's like nice to meet you guys. बात ये है, so माशाल्लाह अच्छा लगा आप इवेंट हुआ यहाँ पर फैमिली को आए हैं, आप लोगों का सबका हमेशा का आपका केसी का, so मानव भाई थैंक यू वेरी मच. देखिए रेस्टोरेंट आपने कम्युनिटी के लिए ओपन किया हम लोगों ने यहाँ पर, so good to see you guys here. So especially आपने जब बोला कि आप लोग ये शो कर रहे हैं it's for the cause, so I said why not to have my part in this one as well. Thank you so much. So that's what we're doing here. So we'll make sure जहाँ पे हमारी सपोर्ट होगी we are here to support. Thank you again. We need a louder round of applause for the CEO of Charsi Karai, Lord Kaya. He has actually sponsored this entire media briefing for us today, and for one and only our dashing superstar Amanat Ali. So can we have another round of applause for one and only Jamshed bhai? Thank you so much. Thank you. Then we have a politician here, Janab Sami Ijaz, who is a regional councillor from Ward 3, Milton. Needs no introduction. Very famous personality in our community. Not only a politician, but an actor, an activist, and whatnot he is. He's everything basically. So I want him to say a few words as well. So ladies and gentlemen, I need to give this introduction because Sami Ijaz, the honorable regional councillor for Ward 3 in Milton. Can we have a huge round of applause, please? Elected at the age of 29, Sami has made a strong impact in just 24 months in the office. In addition to his role as a councillor, he serves as a budget chair and as a director for Conservation Halton. It's such an honor. Your leadership makes us salute you. Once again, give it up for the Honorable Council. I'm associated with so many people, so many organizations. I'm always ready to come and help and support organizations working. Thank you so much. So I miss the ladies in front of me. Asma? Yes. Nuzhat from Ajax, Asma Khan from Scarborough, Kaz is here. Welcome, Kaz. Shaka ji from Mississauga. Shaka ji is Foreign Professions of Canada. Yeah, Foreign Professions of Canada. Yes. Foreign Professions of Canada. We've got Irfan here.
इरफान जी आप क्या करते हैं? इरफान जी is our community photographer here. We've got Zahra here. Zahra जी क्या करती हैं आप? मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की कमाई उड़ाती हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं करती, टीवी देखती हूँ, शो देखती हूँ। We've got a pretty lady behind Zahra ji, and that is Preeti. You like to do this, Preeti? Hey, Preeti, why don't you come and sit here, please? There's room. Yes, just pull a chair. So Preeti is again. Yeah. Can I take a chair? So Preeti is from media again. Preeti does events. And Preeti is very well known in the Indian and Pakistani community. Preeti, anything else you'd like to say? Yeah, that's it. I wear many hats. I'm into insurance. I'm an insurance advisor, mortgage advisor. And I've been a radio host on Silla Radio 1650. Now I'm taking a break. So yeah, we're connected in community. I'm a founder of Indo-Canadian Women's Club. So I keep hosting events with them. Wow. So I think we can hear even without the mic. Yeah, even without the mic. Yeah. We've got Tausif ji sir. From Urdu Post. Urdu Post and his media. We have another media and we are covering for this live. Yes, thank you. Thank you so much. Yes, sir. Aftab Rashid is my name. Basically, I'm a financial professional, but I'm associated with the Voice of Toronto TV as a host and anchor. And this photography is my passion. I do it on my own. So today, Aftab ji has volunteered to take some snapshots for us. Thank you so much. Irfan Ali needs no introduction from Discover Pakistan. We are honored to have him here, senior most and a very capable media personality. Senior most how in age? No, an experience. People have learned. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका तशरीफ लाए। हमारे साथ जो हैं वो फारूक मलिक, आजकल हमारे कम्युनिटी में बड़ा एक चर्चा चला हुआ है कि कौन असली मीडिया है, कौन जाली मीडिया है, जिसके हाथ में फोन है वो मीडिया है। आज मैं बताता ही हूँ कि जो असल काम कर रहा है, जो मेन मीडिया है ना, वो जर्नलिज्म तो कर नहीं रहा, वो भी यही कर रहा है। तो if they are doing it and they are doing it at a very reasonable rate, in fact they are doing it all free, a big round of applause to all of you to do voluntarily all this. तो बेहतर है कि हम इनको यूटिलाइज कर लें instead of बहुत शुक्रिया। फारूक मलिक साहब माशाल्लाह हमेशा हेल्प के लिए तैयार होते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगी, फोन चाहिए फोन मिलेगा, कवरेज चाहिए कवरेज मिलेगी, एवरीथिंग ही डज माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वी हैव आयशा, needs no introduction. She wears also a number of hats, but she is a media influencer. Thank you so much for coming, Aisha. And I want to recognize Zahra Baji because she is the one, though we said aap sabko passes milenge, she bought 25 tickets for herself and Kiran bought 25 tickets as well. So 50 tickets these two bought, which is a big thing and I really appreciate it. And again, she's promised to sell another 100. We have still at least 300 tickets left. So बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौहर बंगेश साहब, he needs no introduction. Need to reduce the sound. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات बिखरे है बार तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल कोई मिल गया everybody sing along मेरा दिल गया क्या बताऊं यारो मैं तो हिल गई कोई मिल गया everybody मिल ही गया मिल ही गया
on December 15th. You will see. नो प्रॉब्लम क्यों हमारे में सही क्या है परेशान मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। इंटरफ्लो में पूरा जमशेद गाले नो प्रॉब्लम क्यों हमारे में सही क्या है परेशान मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। इंटरफ्लो में पूरा जमशेद ये फिल्म आसिफ साहब आपने बहुत अच्छा अप्रोच किया है ये इट्स अ वेरी गुड इवेंट है ये बहुत ही आपका क्लास अच्छा है वंडरिंग वन थिंग कि जो फंड रेज कर रहे हैं उसका कैनेडियन गवर्नमेंट मैच कर रही है आपको देने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट मैच नहीं कर रही है इसको हाउस ऑफ पैलेस्टीनियन को हम लोगों ने चार्ज दिया है दे विल टेक द प्रोसीड्स फ्रॉम अस और उसके बाद दे विल डिस्पर्स इट टू द ऑर्गेनाइजेशन से वर्क विद हु आर ऑन ग्राउंड इन गाजा एंड लेबनान तो this is what the brief answer is. Time मुझे indication आ गई कि खाना is going to be ready. We'll have picture opportunity, but before that we'll ask Amanat to sing a few lines of his song, and then we'll. Thank you. Which song would you want me to? अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है इन्हीं के दर से हक का कानून मिलता है अरे मैं उस अली की बात करता हूँ कि जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता हो पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा हो पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा सारे सुना रल के सुना हो नारा अलीदा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा। तो रास्ता पूछ रहे थे उन्होंने कहा जी कोई मोहम्मद नामी नबी हैं उनके पास हमने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुछ सवाल हैं अगर वो इनके जवाब दे देंगे तो हम उनका मजहब हम कबूल कर लेंगे तो अगर नहीं जवाब आए तो फिर हम झुकला देंगे नौजुबिल्लाह मिन। तो हजरत सलमान फारसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बोला कि तुम शहर की तरफ क्यों जा रहे हो मैं तुम्हें दरवाजे तक लेके जाता हूँ उसको तो गुजर के दिखाओ वो दरवाजा पार करके दिखाओ वो लेके गए हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास। अब मैं एक सवाल भाई सुनाऊंगा क्योंकि टाइम कम होता है ये बात तो मैं 10 घंटे तक कर सकता हूँ एक सवाल और मैं आपके जवाब पे आऊंगा वो जो हदीस की जो मैं बात कर रहा था एक सवाल आप इस सवाल का लेवल चेक करें उनके बाकी के 29 सवाल कैसे होंगे। उन्होंने पूछा जी हजरत अली से फरमाया हजरत अली बैठ गए तशरीफ फरमाते तो पहला सवाल आया कि जी इस दुनिया का ये जो प्लैनेट है इस दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है इस दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिस पर सूरज की रोशनी जब से ये कायनात बनी है और जब तक कयामत नहीं आएगी या आज तक उस हिस्से पे सूरज की किरण सिर्फ एक बार पड़ी। चेक करें कि इस प्लैनेट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पे सूरज की किरण सिर्फ एक बार पड़ी है जब से ये दुनिया बनी। अब आप मुझे बताएं कोई इंसान इसका जवाब दे सकता है? नहीं, सिर्फ डिवाइन नॉलेज जिसके पास होगा वो जवाब दे सकता है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के आगे आगे जा रहे थे अपनी कौम के साथ और उनके पीछे जब फिरौन अपनी कौम के साथ आ रहा था
तो अल्लाह के हुक्म से उस समंदर ने जो उनको रास्ता दिया था, और वो जो ज़मीन थी जिससे वो गुजरे थे, वो ज़मीन का ऐसा था जिसने सूरज की किरण सिर्फ एक बार देखी, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो बाकी कैसे सवाल होंगे? सो ये जो घराना है, ये बहुत बड़ा घराना है। सो वो जो हदीस आप कहते हैं, मैं स्टेज पे जो कॉन्सर्ट पे ऐड करता हूँ, तो मैं जैसे बयान करता हूँ, एक बड़ी खूबसूरत एक शायर ने एक शेर की सूरत में इसको नज़म की सूरत में बयान किया है। या अली से किसी ने पूछा कि इसका सबब क्या है, या अली से किसी ने पूछा कि इसका सबब क्या है, कलमे में नबी के नाम को क्यों पीछे रखा है, खुदा ने खुद को दी तरजीह, फिर ये इश्क कैसा है, रखे महबूब को पीछे, कब ये आशिक का शिवा है। अली ने इस तरह समझाया उस गुस्ताख बेहद को, अरे नादान समझा तू नहीं अभी तक राज़े पिन्हा को, खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद का कि ले लेना ना बाकी में कोई नाम अहमद का, जुबान धुल जाए जब पहले नाम अल्लाह का निकले, फिर कलमा मेरे रसूल अल्लाह। तो दुरूद पढ़ दीजिए एक बार मोहम्मद वाले। Karan. Yes. So I don't have a question. I'm just telling you, like I'm an Indian myself, right? And I love Pakistani music. So I just wanted to say कि जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज जैसे जितनी होती है, मतलब जितना गाना चाहिए उस हिसाब से नहीं गा पाते हो आप, है ना? तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना म्यूजिक निकालते रहो, बिकॉज वी एज इंडियंस लव पाकिस्तानी म्यूजिक एंड आई एम ऑनर्ड कि मेरे फेवरेट सॉन्ग्स राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, सो सारे मतलब मोस्टली पाकिस्तानी सिंगर्स मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। इसकी शरह में अगर जाते हैं कि शहर क्या होता है इल्म का, उसके लिए 2 घंटे चाहिए सिर्फ ये बताने के लिए कि इल्म का शहर, वो कायनात के सब इल्म उस शहर में है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कहा है। और इस वजह से उस दौर में ये एक हवा था कि यार ये हदीस है, इस जो बनु हाशिम कबीला है और नबी अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बड़े बड़े दावे हैं कि ये बड़ा सखी घराना है, बड़ा बाइल्म घराना है। और आपने सुना होगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का उनका दावा था, पूछो पूछो सलूनी सलूनी, एक बहुत अरबिक एक वर्स है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दावा था कि पूछो पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, मैं ज़मीन की निस्बत आसमान के और आसमान की निस्बत ज़मीन के रास्ते बखूबी जानता हूँ, जो वो इल्म का दरवाज़ा था, और दरवाजे से जाएंगे तो आप इल्म तक पहुँचेंगे। सो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने लगे, उन्होंने फरमाया कि मुझे दुख है कि जितना बड़ा मैं आलिम था उतना बड़ा मुझसे सवाल नहीं पूछा गया, और जितना बड़ा मैं सफ़ी था उतना मुझसे मांगा नहीं गया। और ये जो उन्होंने फरमाया है कि उतना बड़ा सवाल नहीं पूछा गया, ये अली जो फरमा रहे हैं ये किसी और लेवल की बात हो रही है। वरना मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया हो, मुश्किल से मुश्किल ऐसे ऐसे सवाल जिसका दुनिया में जवाब ही नहीं, इंसान की अक्ल में जवाब नहीं आ सकता, जिनके जवाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दिए। फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझसे सवाल ही नहीं पूछा गया, मुझसे सवाल ही नहीं पूछा गया। एक सवाल हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, एक यहूदियों का वफद आया बहुत बड़ा, ये आई थिंक अल निब्रास के नाम से मूवी भी है, यूट्यूब पे आप देखिएगा। वो पादरी थे, बहुत बड़े उलमा इकराम थे उनके, वो भाईजान 30 ऐसे सवाल लेके आए। अब 30 का तो टाइम नहीं है, मैं उनसे एक सुनाऊंगा आपको उससे आइडिया हो जाएगा वो क्या सवाल लेके आए थे। उन्होंने ये हदीसें सुनी हुई थी, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इनका शहर वली इसका दरवाज़ा पे, अली का दावा है पूछो पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, मैं ज़मीन की निस्बत आसमान। तो ये इन दावों को हदीस सुनने के बाद वो आए, इसलिए से आए कि हमने इस मज़हब को झुटला के आना है। वो 25 से 30 ऐसे सवाल लेके आए जिनका जवाब इंसानी अकल दे ही नहीं सकती। वो आए, उन्होंने गज़ल भी गा रहे हैं। सो मैं भी वो सब कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे दुनिया का कोई जॉनर दे, मैं आपको गा के दिखा दूंगा अभी फौरन, बट दी ओनली थिंग इज हमें दिया नहीं जा रहा। यही शायरों का है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टैलेंट तो है, टैलेंट शायरों में भी है, टैलेंट सिंगर्स में भी उतना ही है जितना होता था। दी ओनली प्रॉब्लम इज उसको यूज नहीं किया जा रहा।
सो उसको यूज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इंडस्ट्री की, बाकी टैलेंट बहुत है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं करूँगा, आप कहते हैं कि आपको चांस इस तरह का नहीं मिल रहा, बट सिंस यू हैव गॉट रिसोर्सेज, यू आर वेरी फेमस, व्हाई डोंट यू, आप अपनी लॉन्च क्यों नहीं करते? वो करते हैं, आप यू आर राइट। आप मेरा जो पर्सनल कंटेंट है, मेरे अपने गाने हैं जो मेरे कम से कम पिछले 17 सालों में मेरे ख्याल से मेरे 70-80 सॉन्ग से ज्यादा है जो मेरे पर्सनल सिंगल सॉन्ग्स हैं। उसमें देखें मैंने क्लासिकल भी गाया हुआ है, बल्कि मैंने फर्स्ट मेरी ठुमरी एक सॉन्ग था ठुमरी, मेरी फर्स्ट एल्बम 2008 में रिलीज हुई थी। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय जियो टीवी इन पाकिस्तान के बहुत बड़ा ब्रांड है टेलीनॉर जो टेलीकम्युनिकेशन का। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, बिगेस्ट एल्बम बजट वाइज भी हर लिहाज से। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने लिया था, सनम बलोच, हुमायूं सईद उसमें मॉडल्स थे। मेरी ठुमरी वीडियो थी क्लासिकल, एंड इन इंडिया द एल्बम वाज रिलीज्ड बाय टी सीरीज। उस ठुमरी को फॉर द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इंडिया से, क्लासिकल ठुमरी। Yeah, and the award was presented by सोनू निगम एंड शान जो सिंगर इंडियन। सो क्लासिकल भी मैंने किया, मेरे पॉप भी मैंने अपने जो मेरे हाथ में है, क्योंकि जब हम अपना म्यूजिक करते हैं वो सारा हमारे हाथ में होता है, उसमें हम जो करना चाहते हैं। बट जब हम किसी और के लिए गाने जाते हैं, मूवी सॉन्ग ऑडियो लाइक OST गाने जाते हैं, फिर हम उनकी मर्जी से गाते हैं। सो मेरा ये गिला है जो लोग हमें गाने के लिए बुलाते हैं वो हमें क्यों नहीं मौका देते कि यार खेलो, ये लो मैदान है, इसमें करो जो करना है। ये मेरा सवाल। चलिए आप लाइव गाने पे बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा सुना दे फिर गुनगुना के। सवाल, 2 सवाल। वेरी क्विकली सवाल ऑलरेडी कर दिया के गाने पे। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो आपने कहा था कि आप गाने के अंदर अहादीस को इंक्लूड करते हैं, तो तब से मैं इतनी क्यूरियस थी कि मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कि जिसमें आप मुझे पता चले कि कैसे अहादीस को लिरिक्स में कैसे लेके आपने सुना होगा हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बहुत मशहूर हदीस है। और इसकी अगर हम ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल था, इनके सवाल के लिए तालियां होंगी। बेसिकली सबसे बड़ा फ़र्क जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा जो इंडिया और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ में है, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली और पाकिस्तान की मार्केट छोटी है। और ये कोई बुराई नहीं है, हमारी पॉपुलेशन भी देखें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन और 5 टाइम्स या 5 टाइम्स तो पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, इसलिए उनकी मार्केट भी बड़ी है। सबसे बड़ा फ़र्क ये। और दूसरा फ़र्क ये कि पाकिस्तान में कम से कम जितनी मेरी उम्र है, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, हम एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मैं ये नहीं कहता कि दाएं हो जाए या बाएं हो जाए, बस मिडिल में ना रहें। चाहे अच्छा वो कन्फ्यूजन क्या है, वो ये है कि मौसीकी या शोबिस की जो एक्टिंग वैक्टिंग है सब कुछ हराम है या हलाल। अब आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको पाकिस्तान में देखने में मिलेगा जी गाना बजाना तो हराम है, लेकिन वो चल भी रहा है। सो हराम हलाल की बात नहीं है, या हराम कह के साइड पे हो जाए या हलाल कह के उसको एक्सेप्ट कर लें, बस दरम्यान में ना रहें। सो इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक मुल्क में जब भी कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि मौसीकी हराम है या हलाल है, म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, वहाँ पे आपको उसकी प्रोग्रेस और उसका एक्सपोजर आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा, कंपैरेटिवली वो पाकिस्तान में कम होगा। सो इसका जो हम शिकार हैं, ये बहुत ये चीज़ हमारे सामने आती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 सालों में ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत क्लियर भी हो रहा है और चेंज हो रहा है। इस तरह आप देखें कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा अच्छा कम बैक किया है, रिवाइवल जो उसका चल रहा था वो हमारे देखते देखते हुआ है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मैंने सपोर्ट किया है। हम प्रीमियर्स पे जाते हैं, जिस तरह आप सब लोग इस कॉज को सपोर्ट करने आए हैं, हम आर्टिस्ट जाते हैं पाकिस्तान में मूवी प्रीमियर्स पे, हमें कोई पैसे नहीं मिलते उसके, हम चार्ज नहीं करते, हम टाइम निकालते हैं, मूवी प्रीमियर्स पे जाते हैं, वहाँ पे मीडिया से बात करते हैं। सो इस तरह हमने म्यूजिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है।
सो अब चीज़ें थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। सो ये मुझे फर्क नज़र आता है जिस वजह से हम थोड़ा सा लैग बिहाइंड हम करते हैं इंडिया की इंडस्ट्री से। I want to make a comment. आपकी आवाज़ नहीं। मैंने कहा एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, म्यूजिक हलाल है या हराम है। तो म्यूजिक डेफिनेटली हलाल है। उसकी रीजन ये है कि कहा जाता है कि लहने दाऊदी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो गा के लोगों को तबलीग किया करते थे। और फिर हम नेचर को देखते हैं, परिंदे जो चहचहाते हैं, जो बर्ड्स चर्पिंग और चिड़ियों की आवाज़ें, तो जो म्यूजिक है सारा तो इंसान ने इसी से लिया है। तो इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि म्यूजिक हलाल है। और एक छोटा सा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी आवाज़ें होती हैं और बहुत खूबसूरत गाने वाले होते हैं, मगर जो पोइट्री का लेवल है वो गोल्डन एरे की पोइट्री हमें फिर नहीं नजर आती, जो कि बहुत से पोइट हैं। कहा जाता है कि 5000 पोइट्स हैं जो कि मुसलमानों में पाए जाते हैं। ये किसी ने काउंट करके फिगर बताई है। और या तो उनकी पोइट्री को गाने वाले लेते नहीं और गाते नहीं, और जो भी वो खुद बनाते हैं, जो मुनासिब समझते हैं कि ये हमारा जैसे गाना एल्बम भी बना ली चल जाएगा, मगर कंटेंट जो है ना उसकी तरफ गाने वालों की या तो एक्सेस नहीं है या तवज्जो नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? यानी वो जो जिस तरह हम रफ़ी के गाने सुनते हैं या पुरानी पोइट्री सुनते हैं तो वो एवर लास्टिंग है, मगर आज की जो पोइट्री है या जो गाने वाले गाते हैं वो एक वक्ती असर तो ज़रूर देती है मगर एवर लास्टिंग नहीं होती। तो ये एक चीज बता दूं, भाई साहब खुद बहुत अच्छे शायर और सिंगर भी हैं। इसलिए उन्होंने पोइट्री पे जोर दिया है कि वो जानते हैं लफ्ज़ों को। अच्छा, इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं है कि उस दौर में अच्छे सिंगर्स थे और अच्छे शायर थे और इस दौर में नहीं है। इस दौर में भी अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत बहुत अच्छा गाने वाले हैं और बड़े बड़े अच्छे शायर हैं। बिकॉज मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, सो मैं तो पर्सनली जानता हूँ। The only problem is रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंगर उस तरह ही गा रहा है जिस तरह उससे रिक्वायरमेंट की जा रही है कि आप ये गा दें। अब एक शायर को हम बुलाते हैं, उस शायर को हम कहेंगे यार इस टाइप का लिख दो हमें, जो चल रहा है आजकल, उस शायर, क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं, तो शायर उस तरह का लिख के चला जाएगा जिस तरह हम उससे चाहते हैं। मेरे ख्याल से उनसे वो काम नहीं लिया जाता। अब देखिए मैं आज बिकॉज मैं नेगेटिव मेंटालिटी का बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। आप अक्सर मुझे देखेंगे मैं गिले शिकवे नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करूँगा, लेकिन आज मैं गिला करूँगा। ये मेरा गिला है। मैं ये गिला नहीं कि मुझे काम नहीं मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम मिल रहा है माशाल्लाह। आजकल पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री जिस तरह मैंने कहा है फ्लरिश कर रही है। मेरे पिछले 2 सालों में 12 ड्रामा सॉन्ग्स माशाल्लाह आए हैं जिसको हम OST कहते हैं। थैंक यू। और जिसमें से हिट भी हुए हैं। लास्ट मेरे हमसफर बहुत हिट हुआ है, उसको अवार्ड मिले। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो डिजर्व करता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान में काम दे रही है। लेकिन गिला ये है कि जिस तरह से मैं एक वर्सटाइल सिंगर हूँ, इंडिया से भी जब इंडिया में परफॉर्म किया मुझे वर्सिटिलिटी के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि अमानत इज़ दी ओनली वर्सटाइल सिंगर ऑफ दिस शो सारेगामापा। वर्सिटिलिटी से मुराद के मैंने वहाँ पे भी 70 किस्म के जॉनर्स गाए हैं, भंगड़ा से लेके पॉप, रॉक, गज़ल, क्लासिकल, फोक, सूफी, सब गाया। तो मेरी इस एबिलिटी को पाकिस्तान में यूज़ नहीं किया जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, बिकॉज मार्जिन नहीं है। एक ही टाइप का कर रहे हैं। मुझे ड्रामा सॉन्ग्स के लिए बुलाया जाता है, मैं हफ्ते में 4 ड्रामा सॉन्ग्स भी गाता हूँ, एक ही तरह के, आप सुन ले, एक ही तरह के। वो मुझे मैदान नहीं दिया जा रहा खेलने के लिए कि यार जो मेरे अंदर है वो मैं निकालना चाहता हूँ कि मुझसे ये इस तरह मैंने इस टाइप का है, मुझे इस टाइप का गाना दें, इस टाइप का गाना दें। और मुझे कोई शर्म नहीं आती है कहने में, एक सिंगर के लिए अपनी वर्सिटिलिटी दिखाने के लिए इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस। आप देखिए, मैं नाम लूँगा, अरिजीत सिंह इस वक्त हैं, आप उनके पिछले 12 साल का स्कोर उठा के देख लें, आपको हर तरह का गाना मिलेगा। वो पॉप भी गा रहे हैं, रॉक भी गा रहे हैं, वो फोक भी गाते हैं। तरीके से मुझे करना ही नहीं, वो मेरे लिए वो बेस्ट है ही नहीं। आई वोंट बी एबल टू गिव माय बेस्ट। तो हम काम छोड़ देते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ
क्या कहते हैं, मेरे काम की जो क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इंशाल्लाह इस पे बहुत ही मज़ा आएगा। ये इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मेरा वादा है इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस शो पे। Any other question before we have some picture opportunities and then open the buffet for you guys? Yes. टिकट्स के लिए मैं ये चीज़ दोबारा भी रिपीट करना चाहूँगी। If you are selling, you can sell through Eventbrite or through e-transfer, or get the cash and you can transfer later, or give us the names and we can have those names and you can enter. Is that okay? और कोई सवाल है प्लीज पूछिए। मदीहा सब हो गया। In the meantime ये बताते चलें कि कोई स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको राब्ता करना है तो माय नंबर है 6476285342। जी सर। जी इमरान साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इंडिया में आर्ट को बड़ा प्रमोट किया जाता है। आप देखते हैं कि उनके पास मल्टीपल ऐसे स्टेजेस और ऐसे वेज हैं, जैसे आप जिससे आप भी आए हैं, खाने का मकान है, इंडियन आइडल है, वहाँ से हर साल उनके बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बन के निकलते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरिया और ऐसा कोई प्रोग्राम पाकिस्तान की साइड पे हमें नजर नहीं आता। और हम ये भी देखते हैं कि हम किसी बात है कि बड़ी लकी है कि आप एक नई नस्ल में से आप निकल कर आए हैं, वरना आने वाली जनरेशन में हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं नजर आती। तो आप किस तरह देख रहे हैं अपने मुल्क में इस आर्ट का मुस्तकबिल और इस आने वाले दिनों में, जबकि ऑन द अदर साइड एक बहुत बड़ा तूफान वहाँ पे निकल रहा है? हमारे से पहले थोड़ी चीज, ये लाइव परफॉर्मेंस होगी और इसमें कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता दूं। एम्बियंस जो है ना, आपको ऐसा फील देगा जैसे सीए सेंटर का एम्बियंस होता है। वी आर पुटिंग वेरी नाइस लाइट साउंडिंग इन प्रोडक्शन। अमानत, आप यकीनन एक्सपेक्ट कीजिए कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अपने काम के साथ वफादारी और लॉयल्टी होना बड़ी ज़रूरी है। और किसी भी टाइप का इवेंट हो, क्योंकि हम तो करते हैं हर तरह के इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट, चैरिटी, कमर्शियल, प्राइवेट। मैं आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, चाहे सामने मेरे 100 लोग बैठे हों, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, मेरी परफॉर्मेंस का लेवल एक ही होगा इंशाल्लाह। और सेकेंडली जो आपने कहा कि कैरियोके सिंगर और ये सारा, आप यकीन करें देयर इज अ लॉट ऑफ इनसाइड स्टोरीज दैट यू गाइस नॉट अवेयर ऑफ। हमारी जो शोबिज़ की, जो म्यूजिक इंडस्ट्री की स्टोरीज होती हैं, मैं इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो है मैं छोड़ता हूँ पूरे साल में, सिर्फ इस वजह से कि जब हमें क्वेरीज आती हैं कॉन्सर्ट्स के लिए कि आप पाकिस्तान से हमें अमेरिका बुलाना चाहते हैं, कनाडा बुलाना चाहते हैं, तो वो जब कोटेशन लेते हैं तो हम जब कोट करते हैं कि जो इट्स गोना बी 6 पीपल, 1 मैनेजर, आर्टिस्ट, उनकी 6 टिकट्स होंगी, 8 टिकट्स होंगी। लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं तो मुझे कोई मतलब वो नहीं है कि मैं डिस्काउंट लूँ। Thank you so much. It's a large audience to talk about that. Question देता हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन नहीं है, 4 टिकट चाहिए। Okay, so Eventbrite is the platform. 4 टिकट का सवाल है, आप VIP लीजिए। तो ये प्रोग्राम होने जा रहा है चिंगुजी ऑडिटोरियम के अंदर। The capacity is almost 1,000 people there. It's a theater style. It's not a table arrangement. A lot of people are saying, can we book a table? It's not a table arrangement. It's not a banquet hall. It's a theater style setting there. आप सब लोगों से गुजारिश है कि if they are buying VVIP, they will be placed in the first 3-4 rows, and then the $59 people, that's a VIP ticket, is going to be the 7th, 8th, and 9th, and then the rest will be 25 afterwards, and it's going to go up till the end. So there is no food there. There will be water served. Crispy is one of our sponsors, so they will be giving all of you a goodie bag on that day. Anybody who's going to attend there, they're going to get a goodie bag. So there will be 1,000 goodie bags from there. There will be a container coming in there to give you goodie bags. It will be placed on the chair.
So आपका क्या कहना है? जो टिकट्स बल्क में सेल कर रहे हैं, we'll compensate them depending on what it is. We possibly will give you 10% of what the ticket price is, and it can add up. It could be $100, $200, $300 cash back that we'll give you. We have got about 320 tickets left, but if you could really rush and get this thing done, really appreciate it. Thank you so much. Question? Everybody present and get the details. You can click the link on Eventbrite. If you just type Amanat Ali, all the social media stars that we have here. Thank you so much for coming tonight. Thank you so much. My media partners and my sponsors. This event is nothing without you. So can we have a round of applause for all our sponsors? And of course, one and only Syed Asif Khan. Thank you so much. अच्छा, जो जहाँ से बात suppression की हो रही है, तो we condemn wherever the suppression and oppression is in the world. We recently found in Pakistan it has happened. It was a very sad incident. उसके लिए भी बहुत ही अफसोस है, और हमें चाहिए कि MPs को encourage करें to bring the petition and to talk about it. We have got Taha and Saleh also. Thank you so much for coming. Do you have any other question before we have picture opportunities and the food will open up soon? Yeah, so do we have anything? Any other question in the audience? Yes, so questions from the audience, which I have been asked, I would like to ask Asif. And then this would again motivate you all to ask maybe a few more questions. So Asif, could you first, I have a couple of questions for you, for the audience out there. What made you create this Together for a Cause? So we were working, this is not a charitable, it's a charity, but we are not doing fundraising there. So there are a lot of people who are saying that this is a fundraising event there. No, we are doing charitable fundraising program on December 23rd. We are going to announce it very soon, and there is another celebrity who is coming. I'm not going to reveal the name unless we finalize the details. So most likely day after tomorrow we are going to reveal that. This is the event, a ticketed event, and the sponsors who are coming forward. Any proceeds that we are going to get, a portion will be given to Gaza and Lebanon victims and their families. So the idea was to, when we thought about this, there was a charitable organization again. They came to us and they approached us and said, you know what, we want to do a few programs. So we booked 22 programs for Amanat. Next year, 2025, 15 in US and 7 in Canada. So we were quite honored that Amanat has, given such a nice deal to that organization. So we capitalized on it. We said, 2024 we should not let go for 2024, and he honored the same deal to us, and I really appreciate it. Thank you so much, Amanat. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Shazia wants to say something. Assalamu alaikum everyone. Thank you for this event. You all came here, such a big crowd. And of course it's a very big cause, so we'll try our best to do what we can do. Okay. So we'll try our best to do what we can do regarding this event. So sure it will be like a nice event and funful plus manageable for the host to what you are doing for the cause. Thank you. Thank you so much. Yes. So दो questions और हैं, उसका भी आप बताएं, फिर आप और questions दे सकते हैं. The second question is, could you just tell everybody about the venue? What is the capacity there? And the seating arrangement for the sponsors and for the rest. Second is, all these wonderful people here supporting, I know you've announced that they will be having complimentary tickets, but then if they do sell in bulk, there is some cash back. There are some more incentives.